چنیں برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کا امریکی کانگریس سے خطاب. But no less strong for it. So perhaps in this example, we can discern that our nations are in fact instinctively like-minded, a product of the common democratic, legal and social traditions in which our governance is rooted to this day. Drawing on these values and traditions, time and again, our two countries have always found ways to come together. And by Jove, Mr. Speaker, when we have found that way to agree, what great change is brought about, not just for the benefit of our peoples, but of all peoples. This, I believe, is the special ingredient in our relationship. As President Trump himself observed during his state visit to Britain last autumn, the bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It is irreplaceable and unbreakable. Mr. Speaker, this is by no means my first visit to Washington, D.C., the capital of this great republic. It is, in fact, my 20th visit to the United States and my first as King and head of the Commonwealth. This is a city which symbolizes a period in our shared history, or what Charles Dickens might have called a tale of two Georges. The first president, George Washington, and my 5 times great-grandfather, King George III. King George, as you know, never set foot in America, and please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. The founding fathers were bold and imaginative rebels with a cause. 250 years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day, they declared independence. By balancing contending forces and drawing strength into diversity, they united 13 disparate colonies to forge a nation on the revolutionary idea of life, liberty, and the pursuit of happiness. They carried with them and carried forward the great inheritance of the British Enlightenment, as well as the ideals which had an even deeper history in English common law and Magna Carta. برطانوی بادشاہ چارلز کا امریکی کانگریس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتا ہوں. پرتشدد واقعات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ایسے اقدامات کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایران نے بتایا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا فوری خاتمہ چاہتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ. کہا ایران کے لوگ اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کو آبنائے ہرمز کو معاشی ایٹم بم کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بحری جہازوں سے پیسوں کی وصولی قبول نہیں. سخت گیر ایرانی عناصر ڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں. CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں مرحلہ وار آگے بڑھائی جائیں گی.
पाकिस्तानी सालिसों को जंग बंदी के लिए नई ईरानी तजावीज़ मिलने का इम्कान। CNN ने नई रिपोर्ट सामने ले आया। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान आइंदा चंद रोज़ में जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान आमद पर नई तजावीज़ पर मुल्क की आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। देखना होगा ईरान अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक काबिल कबूल नई तजवीज़ पेश करता है या नहीं। मुश्तबा ख़ामनाई से राब्ते में मुश्किलात के बायस फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ईरानी सुप्रीम लीडर ताहाल खुफिया मकाम पर मौजूद। अमरीका सुपर पावर होने के बावजूद जंग में एक भी हदफ हासिल न कर सका। अमरीकी सदर अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जिस पर हम गौर कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इज़हार किया। सोशल मीडिया पर पैगाम में अब्बास अराग़ची ने कहा, रूस के साथ आला तरीन सतह पर राबते खुशाइंद है। हालिया वाक़यात ने हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद नुमायाँ किया। सिफारतकारी के लिए रूस की हिमायत का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम मनिया ने कहा है कि ईरान अब भी हालत जंग में है। हम जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी फ़ज़ाई हदूद की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दुश्मन ने जारहियत की तो उसे सख्त जवाब देंगे। उसे नए हथियारों और नए महाज़ों का सामना करना पड़ेगा। और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 29 बहरी जहाज़ों को वापस भेज चुके हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंगल को ईरान से ताल्लुक़ के शुबा में बहिरा अरब में एक तिजारती जहाज़ को रोका। अमले को इस यकीन दहानी पर छोड़ दिया गया कि वो ईरानी बंदरगाह नहीं जाएगा। इजाज़त मिलने के बाद जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जर्मन चांसलर पर तनकीद। सोशल मीडिया बयान में कहा, जर्मन चांसलर ने ईरान के एटमी हथियार रखने को दुरुस्त करार दिया है। हमें कोई हैरत नहीं। जर्मनी मौशी तौर पर इतनी बुरी हालत में क्यों है? हम कहते हैं अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ गए तो वो पूरी दुनिया को यरगमाल बना लेगा। हम ईरान के साथ वो मामलात कर रहे हैं जो साबिक सदूर को पहले कर लेना चाहिए था। अब ये बताएं कि मुत्तहदा अरब अमारात का 1 मई से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक इक़दाम का मकसद तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी विजन के मुताबिक तवानाई के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम बनाना और मकामी पैदावार में सरमायाकारी को तेज़ करना है। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम को बड़ा धचका। मुत्तहदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुक्काम के मुताबिक इस फैसले पर अमल दरामद 1 मई से होगा। बयान में कहा गया है, ये फैसला मुत्तहदा अरब अमारात के तवील मुद्दती तस्वीराती और इक़्तिसादी विजन और तवानाई के शोबे में होने वाली तरक्की के ऐन मुताबिक है। इस इक़दाम का मकसद तवानाई की मकामी पैदावार में सरमायाकारी को तेज करना है, जो एक जिम्मेदार और काबिल एतमाद पैदा कुनिंदा के तौर पर अमाराती अज़्म को मजीद मुस्तहकम करेगा। तर्जुमान UAE वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है, मुत्तहदा अरब अमारात अपने शिराकतदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने 1967 में अमारत अबूज़ाबी के जरिए ओपेक में शमूलियत इख्तियार की थी और सन 1971 में रियासत के क़याम के बाद भी ये रुकनियत बरकरार रही। ताहम 59 साल बाद इस तंजीम से अलहदगी इख्तियार कर ली है। माहिरीन का कहना है कि अमारत के इखराज से ओपेक मजीद कमज़ोर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ओपेक पर तेल महंगा फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं।